Okay, so hi my dear students. This one is exclusively for class 12th accountancy students and CA foundation guys. Herein I'll be discussing issue of debentures with respect to redemption. Yes, the entire chapter in just one slide. Let's see. Okay, so all in all, there will be two entries that will be passed for this case. Two entries, that's it, only two entries, and the entire chapter I am telling you is over. First entry remains common in all the cases. What else do you want? First entry will be bank account debit to debenture application. Those who have studied shares is exactly same as bank account debit to share application, right? There are three possibilities for issue. One is at par, the other is at discount, the other is at premium. Each possibility further has two possibilities of redemption. या तो उसको वो par पे redeem करेंगे, or they will redeem it at premium, and likewise for all the cases. So what do you get is there are 3 into 2, 6 possibilities. Make sense? 3 into 2, 6 possibilities. अब आप सोच रहे होंगे रिडम्पशन एट डिस्काउंट तो इस केस में है ही नहीं, बिकॉज इशू एट डिस्काउंट तो हमको मिला, तो रिडम्पशन एट डिस्काउंट क्यों नहीं है? बिकॉज रिडम्पशन एट डिस्काउंट होता ही नहीं है, रटने वाली कोई बात नहीं है। रिडम्पशन एट डिस्काउंट इसलिए नहीं होता है बिकॉज आप कभी भी कोई भी डिवेंचर, टेक इट एज अ नॉर्मल प्रोडक्ट, तुम एक डिवेंचर को लेके आओगे अपने घर में 100 रुपए देकर। अब जब तुम उस डिवेंचर को वापस करने जाओगे एज एन इन्वेस्टर, तुम बेयर मिनिमम 100 रुपए तो अपने पास वापस लेके आओगे, या 100 से ज़्यादा। तो रिडेम्पशन एट पार होगा या रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा। कोई गधा ही होगा जो डिबेंचर लेके घर पे आएगा 100 रुपये देकर, और जब वो डिबेंचर वापस करेगा तो 90 रुपये ले लेगा। तो तूने डिबेंचर रखने के लिए 10 रुपये गंवाए। Who on earth would do that? Nobody does it. So that case does not exist. No need to ratify it. Right? There are few fundamental assumptions that I've taken here. Face value is 100. Discount percentage on issue is 20%. Percentage of premium is 20%. The debentures shall be redeemed at a premium of 10%. Okay. First entry being bank account debit to debenture application. We are clear with that. First possibility is issue at premium. Redemption at par is nothing but normal issue at premium. अगर आपने शेयर कैपिटल पढ़ा है तो आपको पता है कि issue at par की एंट्री क्या होती है? डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, ये स्क्वायर ऑफ हो गए अकाउंट्स, राइट। 2% डिवेंचर्स विद द फेस वैल्यू, ये मम्मी कसम खा के आया है, ये फेस वैल्यू से कभी भी नहीं हटेगा, ये हमेशा 100 रुपए से ही क्रेडिट होगा, जस्ट लाइक शेयर कैपिटल। एंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ 20 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, करेक्ट। अब आप देखिए रिडेम्पशन एट प्रीमियम, दिस इज वेयर द एंटायर क्रक्स लाइज. Entire entry gets transferred here in the black ink. Only the two brothers come in when the redemption is at premium with blue ink. What I've written. The two brothers are loss on issue debit होगा and उसके सामने credit होगा DRPR. What does DRPR stands for? Debenture Redemption Premium Reserve. In your books it is also mentioned as premium on redemption of debentures. मेरे को एक थोड़ी सी रिदम लगती थी तो मैंने बोला DRPR. It's allowed, don't worry. So debenture redemption premium reserve. Let me tell you one more thing. These both the accounts are independent in itself. ये अपना डेबिट क्रेडिट साथ में लेके आते हैं, इनको बाकी एंट्री से फर्क ही नहीं पड़ता। ये पूरी की पूरी एंट्री ऐसे इट इज उतरेगी, ये दोनों भाई आपके सामने आ जाएंगे विथ अ डेबिट ऑफ लॉस ऑन इशू विथ अ क्रेडिट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम रिजर्व 1010 दैट आई हैव अज्यूम्ड. योर एंट्री इज डन. Likewise will be the case with issue at discount. कंटिन्यूएशन विद द शेयर कैपिटल डिवेंचर एप्लीकेशन. वहां शेयर एप्लीकेशन था, 80 रुपए से डेबिट होगा. ये भैया मम्मी कसम खा के बैठा है कि मैं तो 100 रुपए से क्रेडिट दूंगा. डिफरेंशियल कहां जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू. वापस आप देखिए ये तीनों के तीनों हेड उठ के नेक्स्ट एंट्री में आ गए और दो भाई आपके सामने खड़े हैं ब्लू विंग से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड डीआरपीआर. इट इज अ पैटर्न, रिदम है बॉस, रिदम है. पूरी एंट्री सेम उतरेगी शेयर कैपिटल जैसे. शेयर कैपिटल में रिडेम्पशन हमने कभी पढ़ा ही नहीं था बिकॉज शेयर आर नॉट रिडीम्ड सो ऑफ्टन, राइट. डिवेंचर के केस में रिडेम्पशन आ जाता है. रिडेम्पशन दो प्रकार से हो सकता है. रिडेम्पशन कैन बी इधर एट पार और इट कैन बी एट प्रीमियम. एट पार है तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं एंट्री को. अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो दो भाई आ जाते हैं. डेबिट भाई का नाम होता है लॉस ऑन इशू, क्रेडिट भाई का नाम होता है डीआरपीआर, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको बाकी एंट्री से फर्क ही नहीं पड़ता. तो तुम्हारी एंट्री हमेशा इनके बिना भी टैलीड होगी बॉस. And third case is plain vanilla
issue at par, redemption at par, issue at par, redemption at premium, exactly same as share capital. जैसे redemption at premium आया, same set of accounts इधर आ गए with Blue Wing Two Brothers. So a quick summary, there are total 6 possibilities. वो 6 possibilities कैसे हुई? 3 possibilities जो हमारी share capital से चलती आ रही हैं, पर इस बार हर possibility के साथ 2 सब parts, सब possibilities आ गई because debentures redeem होंगे either at par or at premium. तो total तुम्हारे पास 6 cases हैं. अगर आप प्रीमियम केस से चालू करोगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ आपका अकाउंट क्रेडिट होगा एंड देन ये सेम सेट ऑफ अकाउंट्स इधर उतर जाएंगे. पर रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो 2 भाई आएंगे जिनका नाम है लॉस ऑन इशू और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम रिजर्व. ये दोनों अपना डेबिट क्रेडिट साथ में लेके आते हैं. इनको बाकी एंट्री से फर्क नहीं पड़ता कभी भी. सिमिलर इज द केस विद डिस्काउंट, सिमिलर इज द केस विद एट पार. व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इन योर बुक्स these two accounts are at times clubbed. Say discount slash loss debit with 30 rupees and then here everything remains same, right? तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये 2 भाई आपने बोला था सेम अमाउंट के साथ आते हैं, इस केस में तो देखिए अलग है. रीड बिटवीन द लाइंस एंड यू हैव टू सी दैट दिस इज नॉट 30 बट दिस इज अ स्प्लिट ऑफ 20 and 10. That's it from my side. Thank you, cheers, ciao, take care, bye.